بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی تھی کہ ابھی ایک کرائے کے رینٹ پر جو مکان لیتے ہیں، دکان لیتے ہیں یا اور بھی دوسرے جو سامان وغیرہ لیتے ہیں رینٹ پر، بہت سی چیزیں ہیں آج کے دور میں سب رینٹ پر لی جاتی ہیں، سامان بھی رینٹ پر لیتے ہیں، ہر چیز آپ کو رینٹ پر مل جائے گی۔ ابھی کار رینٹ پر لے سکتے ہیں، یعنی سواریاں رینٹ پر، تو سواریاں اس زمانے میں بھی رینٹ پر لی جاتی تھیں، یہ رواج اس زمانے میں بھی تھا۔ تو آج کے اس درس میں اسی رینٹ پر جو چیزیں لی جاتی ہیں ان کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین کو، مکان کو کرائے پر لینے کے تعلق سے اس زمانے کا جو رواج تھا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، تو اس زمانے میں لوگ گھر وغیرہ کرائے پر نہیں لیتے تھے، اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ گھر کا بنا لینا بڑا آسان تھا۔ زمین نہ بھی ہو تو وہ زمینیں جو غیر آباد ہوتی تھیں، جنگل جو ہے جن کو کہا جاتا تھا، وہاں سے اگر درخت وغیرہ کاٹ کر کے اس زمین کو برابر کر کے کوئی آدمی خود محنت کر کے اپنے، اور مکان بنانے کے لیے بھی پیسے خرچ نہیں ہوتے تھے، خود ہی وہ مٹی کی دیوار اٹھا کر کے اور درختوں کے جو تنے ہوتے تھے کھجور کے درخت کے، اس کو پلر کے طور پر استعمال کر کے اوپر چھپر ڈال لیتے تھے جو بارش سے اور دھوپ سے بچاؤ ہو جائے، اور خود ہی لکڑی وغیرہ کو جوڑ کر کے دروازے وغیرہ بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس زمانے میں چیز ہوتی تھی، لوگ خود سے ہی کر لیا کرتے تھے یہ چیزیں، تو کوئی خرچ نہیں آتا تھا، تو ان کو کرائے کے مکانوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جہاں تک زمین کی بات ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ درہم اور دینار اس زمانے کی کرنسی تھی، تو کرنسی پر تو کرائے پر نہیں یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھیں، لیکن جو پیداوار ہوتی تھی اسی پیداوار کا حصہ متعین کر کے کہ جو آدمی کام کرے گا اس پر، کھیتی کرے گا، اور جو مالک ہے زمین کا، اگر دونوں میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ جو بھی کھیتی کرے گا آدمی، اس کی جو محنت ہوگی اس کے لحاظ سے جو پیداوار ہے آدھا حصہ وہ لے لے گا اور آدھا حصہ مالک کو، تو آدھا حصہ جو وہ لیتا تھا وہ ایک طرح سے کرایہ ہی مانا جاتا تھا، وہ ایک کرائے کی ہی ایک شکل تھی کہہ لیجئے، تو اس کی محنت کے لحاظ سے اس کو وہ کرایہ ملتا تھا، یا جو بھی نسبت آپس میں وہ طے کر لیتے تھے اس کے لحاظ سے۔ اس زمانے میں یہ شکل موجود تھی، اس کو کرائے کے بجائے اسے مزارعہ کہتے تھے، اور بھی دوسرے الفاظ عربی میں استعمال کرتے تھے۔ یہ باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، صرف آج کے درس سے جوڑنے کے لیے۔ لیکن آج کے اس زمانے میں تو یہ شکل تو پائی جاتی ہے ابھی بھی، جو کھیتوں میں، جو آدمی کے پاس، بہت سے لوگوں کے پاس کھیت تو ہوتا ہے لیکن ان کے پاس وہ خود کام نہیں کر سکتے، یعنی کھیتی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ آدمی کیا کرے اس سلسلے میں؟ تو دوسرے کو آج بھی وہ دیتا ہے کھیتی کرنے کے لیے، آج بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدھا وہ لے لے گا آدھا یہ لے لے گا، تو اس طرح سے یہ چیز ابھی بھی چلتی ہے یہ، اور دیہاتوں وغیرہ میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو کھیت کے مالک ہیں ابھی
बड़े बड़े लोग जमींदार जिन्हें कहा जाता है ना, वो मजदूर रख करके करवा लेते हैं। यानी मजदूरों को मजदूरी दे देते हैं, चाहे वो डेली बेस की मजदूरी हो या जो है हफ्ते के लिहाज से हो, यानी वीकली हो या महीने के लिहाज से, जो भी है वो उनकी मजदूरी देते हैं, उनकी उजरत देते हैं, और काम अपना उनसे कराते हैं, खेती उनसे कराते हैं। तो इस तरह के काम भी आजकल बहुत चलते हैं। तो दोनों शक्लें अभी भी पाई जाती हैं, ये जो यानी खेती को किसी खेती करने वाले को दे देना, ये दूसरे की जमीन है, ये खेती कर रहा है, जो पैदावार है आधी इसने ले लिया आधी मालिक को दे दिया, तो आज भी वो सिलसिला चलता है। अब मैं जो बात करना चाह रहा था, ज्यादातर शहरों वगैरह में जो मसाइल होते हैं, शहरों में लोग किराए पर मकान बहुत लेते हैं, दुकानें लेते हैं, और यहाँ लोगों की आमदनी का एक बड़ा जरिया ये भी होता है कि अपने पास अगर जमीन है तो उसे किराए पर दे दिया, मकान है किराए पर दे दिया, दुकान है किराए पर दे दिया। और इससे बाकायदा हमारी हुकूमत ने बहुत सारे कवानीन भी इस सिलसिले में बनाए हैं, कवानीन बनते रहते हैं, क्योंकि मसाइल भी बहुत सारे खड़े होते हैं इसके अंदर। तो हम उन सब तफसीलात में तो नहीं जाते मसाइल की वजह से। अब जब किराए पर ये चीजें दी जाती हैं, मकान या दुकान वगैरह, तो इसमें काफी कुछ कंडीशंस रखे जाते हैं, और बाकायदा स्टाम्प पेपर पर उसे वो सिग्नेचर भी लिए जाते हैं, विटनेस भी के तौर पर भी दो आदमियों की उसमें के सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो वो सारी चीजें अभी वो सब तफसीलात की जो है पाई जाती हैं, इसका लिहाज किया जाता है, ये अलग बात है कि इन सब के बावजूद भी किराए पर जिसने दिया है उसको भी बहरहाल परेशानी टेनेंट की तरफ से होती है, जो मालिक है उसको भी होती है, यानी ओनर को भी होती है, और कभी टेनेंट भी ओनर की वजह से परेशान होता है। मसाइल अभी भी होते हैं दोनों तरफ से, और कहीं थोड़ा सुकून भी रहता है, लोग आराम से रहते हैं। तो ये कंडीशन से इसी लिहाज से बढ़ते जाते हैं, जैसी जैसी लोगों को परेशानियां होती है वो बढ़ती जाती है। और इन परेशानियों की एक अहम वजह ये है कि जो अदालती निज़ाम है, कोर्ट का जो सिस्टम है, वो इतना लंबा चलता है कि इसकी वजह से कभी टेनेंट को ये एहसास, अगर टेनेंट थोड़ा क्या कहते हैं आज की जबान में जरा दबंग किस्म का हो, तो उसको ये रहता है कि ये क्या करेंगे, जाएंगे पुलिस के पास, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में मसला चला गया तो इनको ही परेशानी, फिर तो ताला लग जाएगा, और सालों चलता रहेगा, सालों इनको भी कुछ आमदनी होने वाली है नहीं उसके बाद इस जगह से। तो ये जो डर सताता है ना कि कोर्ट में चले गए तो फिर ये परेशानियां होंगी, तो उसकी वजह से अब टेनेंट भी कभी फायदा उठाता है इससे, और कभी ओनर भी इससे फायदा उठाता है, दोनों जो है उठाते हैं। और मसाइल यहाँ पर इसी वजह से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर इस्लामिक कोर्ट हो जहाँ फैसला फौरन पेश किया गया, फौरन फैसला बगैर किसी ताखीर के, तो वहां फिर ये मसाइल इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जो भी कंडीशंस रखे हैं, जब हर चीज जो है तहरीर में है, लिखी हुई शक्ल में मौजूद है, दोनों के सिग्नेचर हैं, कोर्ट के अंदर पेश किया गया, और जो भी चीज है उसके ताल्लुक से फौरी तौर पर फैसला आ गया, तो मसाइल नहीं होते हैं, परेशानियां नहीं होती हैं लोगों को। तो यहाँ पर भी बहुत से मसाइल हैं, इन सब के बावजूद, इतने सारे कंडीशंस रखने के बावजूद, स्टाम्प पेपर पर सारी चीजें जो है दर्ज करने के बावजूद भी मसाइल बहरहाल लोगों को होते हैं। तो कुछ ऐसे मसाइल जो शरीयत में क्या ये चीज़ जायज़ है या नहीं है, जो हमारे इस मुल्क में चीज़ पाई जा रही है, क्या उसको सही करार देंगे नहीं करार देंगे शरीयत के लिहाज से। तो हम चूंकि यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, इतनी मशहूर हो गई कि लोग बड़े आराम से करते हैं वो, और समझते हैं कि सब सही है, जायज़ है। जो अगर कोई कभी कह दे कि जायज़ नहीं है, तो उस पर लोगों को ताज्जुब होता है, और उससे सवालात करना शुरू करेंगे क्यों जायज़ नहीं है। और जो जायज़ कह दे तो उसको कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि जायज़ है वो, बस जायज़ है, किसी ने कह दिया जायज़ है, जायज़ है, सब करते जाते हैं, ऐसे हैं। तो वही चंद मसाइल आपके सामने जिक्र करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो मसला है हमारे इस जो है मुल्क में कह लीजिए, या हमारे इस शहर के अंदर, वो ये है
कि किराए पर जो मकान या दुकान देते हैं तो लीज का जो सिस्टम पाया जाता है कि लीज पर दे देते हैं। अब उसका सिस्टम क्या है कि एक बड़ी रकम दे दी जाती है, 20 लाख 25 लाख दे दिया मालिक को, मकान को इतनी रकम दे दिया और कोई किराया नहीं देंगे। अब क्या है मसला, वो मालिक मकान उस पैसे से फायदा उठाएगा और वो साहब इस मकान से फायदा उठाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, दोनों अपने अपना अपनी जगह पर फायदा उठा रहे हैं। और जब तक वो वापस नहीं कर देगा 20 लाख 25 लाख जो भी उसको दिया है टीनेंट ने या किराए पर रहने वाले शख्स ने या जिसने लीज एग्रीमेंट किया है उसने, तब तक ये मकान नहीं छोड़ेगा। वो वापस करेगा ये मकान, वो पूरी रकम वापस कर देगा, जब वापस करेगा तो, और ये मकान छोड़ देगा। ये जो सिस्टम है जो यहाँ बड़ी कसरत से पाया जाता है ये सिस्टम, और लोग बड़े आराम से इस पे डील करते हैं और जायज के फतवे दे रखे हैं। और मुझे ये पता नहीं कि किसने पहली मर्तबा फतवा दिया और कहाँ से ये फतवा दिया, कहाँ से इसे जायज करार दिया, कैसे जायज करार दिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैंने बाज जो मदरसों के फारिगीन होते हैं उनकी जबानों से भी सुना कि वो लीज का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय इसको रहन कहते हैं, कि वो रहन पर दिया हुआ। भाई ये रहन, जो रहन की तारीफ है शरीयत के अंदर और रहन की जो कैफियत होती है, वो मसाइल भी, रहन के मसाइल भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वो सब भी आएंगे इसी के अंदर। ये सब भी मामला से ताल्लुक रखते हैं। रहन की तारीफ तो इसके अंदर फिट ही नहीं आती कहीं भी। और रहन में तो ये होता है कि आप किसी से कोई कर्ज लेते हैं और कर्ज देने वाला शख्स, उधार देने वाला शख्स, ये कर्ज आपका बिजनेस के लिहाज से भी हो सकता है और ये कर्ज जरूरत के लिहाज से भी। बिजनेस का मतलब ये है कि आप सामान खरीदने गए लेकिन आपके पास अभी कीमत अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपने उससे कर्ज पर कोई सामान खरीद लिया कि मैं पैसा बाद में दूंगा, जिसको हम उधार खरीदना कहते हैं। तो वो शख्स अपने इत्मीनान के लिए कि ये पैसा मेरा कर्जा जो है वापस करेगा, उस इत्मीनान के लिए उससे तलब करता है कि आप मेरे पास कोई चीज रहन रखो। तो ये रहन असल में उस कर्जे के इत्मीनान के लिए होता है कि अगर बिलफर्ज उसने वापस नहीं किया वो कर्जा, तो क्या करेगा, इसी रहन से ये फायदा उठाएगा। इस रहन को भी, वो शरीयत का वो भी पूरा प्रोसीजर है, उसको बेचा जाएगा, बेचने के बाद जो उसकी रकम बनती है कर्जा की वो ले लेगा, बकिया रकम मालिक को वापस करेगा। जो भी शक्ल उसकी, वो तफसीलात अलग है। तो वो एक रहन की शक्ल होती है। किसी ने कर्जा मांगा आपसे, कर्जा कभी क्या होता है भाई, 10 20 रुपये, 100 2 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 2000 10,000 रुपये आदमी ऐसे ही दे देता है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर सामने वाला वापस भी नहीं किया तो बर्दाश्त कर लेगा आदमी। लेकिन जहां लाखों का मसला होता है और वहां कर्जा कोई तलब करता है, तो उस कर्जे को देते हुए आदमी कहता है अब मेरे पास कोई चीज रहन रखो। वो रहन कहते हैं अरबी में उसको। यानी ये क्या कहता है, एक तरह से ये सिक्योरिटी मनी होता है कि, या मनी नहीं है, ये सामान होता है कुछ ना कुछ, तो सिक्योरिटी के तौर पर, ताकि उसे इत्मीनान रहे कि इतनी बड़ी रकम जो हम इसको दे रहे हैं वो कर्जा वापस करेगा, उस इत्मीनान के लिए उसे रखा जाता है, उसको रहन कहा जाता है। और ये रहन की, ये तो किराए पर आदमी मकान लेता है सही माने में, ये कोई रहन नहीं होता है। तो अब इसको, यानी बाज जो है, मैंने कहा कि वही बाज जो मदरसों के फारिगीन है उनकी जबान से सुना, रहन का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया। ये कहीं रहन जो हदीसों में लफ्ज आया हुआ है, कुरान के अंदर जो इसका जिक्र आया हुआ है, रहन का जिक्र कुरान में भी आया हुआ है, वो जो तारीफ है रहन की, कहीं पर भी इस पर वो तारीफ फिट नहीं होती है। इस पूरी डीलिंग पर वो तारीफ कहीं भी फिट नहीं होती है। तो इसलिए उसको, लफ्ज को यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो क्या है कि अभी जो मकान लोग लेते हैं अपनी जरूरत के लिए, किराए पर लेते हैं, लेकिन
ہوتا کیا ہے، اس میں دو شکلیں چلتی ہیں. ایک شکل یہ چلتی ہے کہ بہت زیادہ رقم دے دی جاتی ہے، وہ تقریباً اتنی رقم ہوتی ہے جو گھر بنانے میں اتنی خرچ ہوتی ہے عام طریقے سے، تقریباً اس طرح کی رقم ہوتی ہے. 20 لاکھ میں نے 25 لاکھ جو گھر کا ایریا جو ہوتا ہے، اگر اس کو اب بلڈ کرے گا آدمی، تقریباً اسی طرح کا خرچہ آتا ہے اس کے اوپر. تو جو بھی خرچہ آتا ہے وہ لے لیتے ہیں اس سے، اور پھر وہ آدمی اس مکان میں رہتا ہے. اب یہ رقم لے کر کے یہ آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. یہ چیز اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس کو واقعی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ پوری رقم پھر وہ بینک میں جمع کر دیتا ہے. اس کا جو انٹرسٹ آتا ہے آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے. اس کو کہ جو ٹیننٹ سے مسئلہ ہوتا ہے، کرایہ دیا نہیں دیا، دنیا بھر کے جو مسائل، ان سب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا. رقم ایک جو ہے اچھی خاصی ہے، جا کے فکس ڈپازٹ کہیں کر دیا، جتنے سال کی بات ہو، سال 2 سال 3 سال 4 سال جو بھی ہے، اچھا خاصا انٹرسٹ آئے گا، اسی انٹرسٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ان کو تو بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے لیے چونکہ ہے وہ، تو اس سے، اس رقم سے، اس سے کیا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر وہ خرچ کرے گا، فائدہ بھی اٹھا لے گا، تو وہ اس کا معاملہ ہے، الگ مسئلہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے اس کے اندر وہ یہ کہ جس نے اس کو رقم دی ہے اتنی، 20 لاکھ 25 لاکھ، اور یہ گھر اس کے پاس ہے اس کا، وہ کس جو ہے اصول کے تحت اس گھر سے فائدہ اٹھا رہا. اگر یہ قرضہ ہے، جیسا کہ رہن کہتے ہیں، یہ قرضہ ہے، قرضے پر دے رکھا ہے اس شخص کو 20 لاکھ 25 لاکھ، اور یہ گھر اس کو رہن کے طور پر اس کے پاس ہے کہ ایک سیکورٹی ہے اس کے لیے، تو میرے بھائیوں پھر اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. رہن کے اس سامان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ ایک امانت ہوتی ہے اس کے پاس. وہ بڑی خاص ایک شرط ہے. جانور وغیرہ جب ہوتے ہیں جن کا خرچہ ہوتا ہے کہ ان کو چارہ دینا ہے، تو جو چارہ دیتا ہے اس کے بدلے میں اس کا دودھ دو سکتا ہے، وہ چارے کے بدلے میں ہے وہ. یا کبھی جو ہے سواری کر سکتا ہے، جو چارہ ڈالا ہے اس کو جانور کو کھانے کے لیے، اگر جانور رہن پر دے دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی سواری کر سکتا ہے، ورنہ رہن کے سامان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اب یہ تو ایک تو شکل یہ ہو جاتی ہے کہ قرضہ دیا اس کو 20 لاکھ 25 لاکھ اونر کو، اور اس قرضے کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کے جگہ پہ رہ رہا ہے. اور شریعت کے اندر قرضے کے مقابلے میں کوئی بھی فائدہ اٹھایا جائے تو اس کو سود کہا جاتا ہے، اس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے. اسی لحاظ سے اس کی حیثیت کیا بنتی ہے؟ سود کی بنتی ہے، انٹرسٹ کی بنتی ہے، اور یہ جائز نہیں. تو احناف کی یہاں تو یہ چیز رہی، یہاں پر ہم نے محسوس کیا کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اسی لیے وہ ہیلے کے طور پر کچھ نہ کچھ کرایہ متعین کرتے ہیں. 1000 2000 4000 جو بھی ہے، معمولی سا کچھ کرایہ وہ رکھ دیتے. وہ کرایہ اصل ہوتا نہیں ہے، وہ صرف ایک ہیلے کے طور پر اسے رکھتے ہیں. تو ایک حرام چیز کو جائز کرنے کا ایک ہیلا اختیار کرتے ہیں، جو صرف ہیلا ہوتا ہے. یہ 1000 1500 جہاں کرایہ 25 30 ہزار ہو، اس جو ہے عرف میں، اس جگہ کے اندر، وہاں 1000 1500 آپ کرایہ دے دیں تو اس کو کرایہ نہیں کہتے. یہ تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک طرف سے کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ، کہ وہ حرام شکل کو اختیار کر کے آپ اس کو ہیلے کے ذریعے سے جائز قرار دیں. تو یہ ہمارے یہاں جو چیز پائی جا رہی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، اور اسی لحاظ سے میں نے یہ آپ کے سامنے ذکر کیا. ہم سے تو کوئی بھی پوچھتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اکثر لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر، اور وہ لوگ دے رکھے ہیں. ہم اپنے آس پاس میں جب دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے گھر ہیں جو اسی لحاظ سے لوگوں نے دے رکھا ہے، اور بڑے آرام سے یہ چیز چل رہی ہے. اور خود ہماری اپنی جماعت کے لوگ ہیں، انہیں ایسا نہیں کہ جو ہے کوئی دوسری جماعت جو ہے،
अपनी जमात के लोग हैं, और बड़े आराम से लीज पर, कोई उसके बारे में तस्वुर ही नहीं होता है कि ये चीज जायज नहीं है, ये तस्वुर ही नहीं दिल में आता है। इस हद तक लोगों ने उसको आम कर दिया, इतना ज्यादा जो है ये चीज यहाँ पर लोगों में आम हो चुकी है। और अगर आप कह भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि बाज लोग जो है पीछे पड़े रहे मेरे इस सिलसिले में कि मैं जायज कहूं, ताकि, क्योंकि उनके सामने भी उनके घर के अपने मसले थे कि उनको भी पैसों की जरूरत थी, वो चाह रहे थे कि लीज पर दे दे मकान तो उतने पैसे उनको मिल जाएंगे और इस तरह से उनके मसन का मसला हल हो जाएगा। तो आप अपने पैसों की जरूरत के लिए, भाई सूद वाला भी तो इसी यही ना करता है, और क्या करता है, आदमी को जरूरत होती है तो सूद के ऊपर कर्जा ले लेता है। जरूरत है ना, जरूरत है, जरूरत ही के लिए लेते हैं लोग, बगैर जरूरत की कहाँ लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि रोड पर पैसा ऐसे ही फेंक देने के लिए कोई जाएगा बैंक से कर्जा लेगा सूद के ऊपर, या किसी शख्स से कर्जा लेगा सूद के ऊपर? तो ये चीजें बड़ी अजीब लगती हैं कि लोग जो है जरूरत है और जो है करते हैं। हद तक कि लोग इसी लिहाज से मकान बनाते भी हैं, यानी घर की तामीर होती है ऐसे ही। कुछ ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, मान लीजिए, बस कुछ पैसे हैं, मैं एक दो फ्लोर बना सकता हूँ, लेकिन तीन चार फ्लोर का हमने योग कर लिया। क्या होता है, वो बिल्डर भी यही कहता है कि हम कुछ देर तक आपके लिए मौका दे देंगे, आप लीज पर जो है लोगों को ढूंढ करके वो लीज पर दे दीजिएगा, वो पैसा आप हमें दे दीजिएगा, आप इस तरह से पूरा बना ले सकते हैं। क्यों खामखा में जो है आप एक ही मंजिल या दो ही मंजिल या एक ही फ्लोर दो ही फ्लोर बनाना चाहते हैं? तो ऐसी भी पेशकश, यानी ऐसे ऑफर्स रहते हैं लोगों के, क्योंकि बहुत ही कॉमन कर दिया इसको कि जहन में सिवाय इसके कि जायज है और कोई तस्वुर ही नहीं आता है, और इसके अलावा कुछ सुनने के लिए लोग तैयार भी नहीं होते। ये एक बड़ा मसला है हालांकि शरीय, क्योंकि इंटरेस्ट का मसला कोई छोटा मोटा मसला नहीं है ना। तो शरीयत के अंदर तो इसके लिए इतनी सख्त बातें कुरान में, कि गोया कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग का ऐलान करता है। एक ऐसी चीज, एक ऐसा मसला, उसको हमने जो है बड़ा कॉमन कर दिया, जो बिल्कुल क्लियर है कि वो सूद है। इसमें कोई शुबहा नहीं है, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मुझे तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट भी नहीं है। और कौन से उसके लिहाज से कह सकते हैं कि इसका इस मकान में रहना बगैर किराए के जायज है? किस जो है उसूल के लिहाज से कह सकते हैं? क्या इसका ये मकान में रहना इसकी वजह से नहीं है कि उसने 20 लाख रुपए दिए? ठीक है, उसको 20 लाख की जरूरत थी, उसने कर्जा लिया, उसी कर्जे के बदले में रह रहा है मकान के अंदर, उससे फायदा, अपने कर्जे से फायदा उठा रहा है। और इसी को शरीयत की इस्तेलाह में इंटरेस्ट कहते हैं, सूद कहते हैं। बहुत सख्त इसमें वईद है शरीयत के अंदर। वईद क्या मतलब, कि जिसको भी आपने कर्जा दिया है, आप उसकी किसी चीज से फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुवा रिबा, कि जिसको भी, हर कर्जा जो कोई फायदा लेकर के आए तो वो रिबा हो जाता है, यानी वही इंटरेस्ट होता है फिर। ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है शरीयत का। रिबा के मसाइल में, सूद के मसाइल में ये चीज आती है। तो बहरहाल ये एक बड़ा मसला है। ये जो शक्ल पाई जा रही है, इसको, ये जायज नहीं हो सकती। हमको किराए पर, किराया कम ज्यादा हो सकता है, अलग मसला है। मतलब क्या हुआ, किराया कम ज्यादा हो सकता है कि किसी को आपने किराया 20,000 किराए पर दिया, वही घर किसी को आपने 18,000 पर दे दिया, 15,000 पर दे दिया, ये कोई मसला नहीं है इसके अंदर। लेकिन वो किराया ही माना जाता है। होता है, बाज ताल्लुकात होते हैं तो बाज लोगों को आपने किराया कम कर दिया। जैसे कोई सामान बेचते हैं आप, तो किसी को आप 20 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन कोई आपका करीबी था या मिलने वाला, चलो भाई आपके लिए हम 18 रुपया ही लेते हैं। तो आपको जो किराया है आपका, अपने किराए में से आप किसी के लिए कम कर दें, उसके अच्छे अखलाक की वजह से, या इसकी वजह से कि ये आदमी एक अच्छा टेनेंट है, ये न निकल जाए,
और पता नहीं दूसरा आएगा तो कैसा रहेगा, उससे अच्छा ये कि इससे कम किराए में ही डील कर लो, वो आपके हक में, आपके इख्तियार में है। लेकिन जो 20,000 किराया, वहां 1,000 2,000 किराया आप कहोगे कि ये किराया है, ये किराया नहीं है। ये तो इस वजह से है कि आप इसको जायज करने की एक शक्ल निकालना चाह रहे हैं, जिसको हीला कहा जाता है शरीयत में। हराम को हलाल करने का एक हीला है, और ये भी जायज नहीं है। वही हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला के यहाँ तो नियतें देखी जाएंगी। ये नहीं देखा जाएगा कि आपने किराए के तौर पर तो रखा था, कुछ न कुछ किराया तो रखा था। तो अल्लाह ताला को पता है ना कि किस नीयत से आपने ये रखा है। असल तो वह हराम ही आप जो है मामला कर रहे हैं, लेकिन बस हीले के तौर पर ये। तो हीलों को तो अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि वो नियतों को जानता है। तो तकरीबन इस तरह के जो हीले होते हैं, जो हलाल को हराम को हलाल करने के लिए इख्तियार किए जाते हैं, उसके बातिल होने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही हदीस पेश करते हैं सही बुखारी में, इन्नमल अमालु बिन्नियात। सबके ऊपर रद्द हो जाता है इससे, कि मसला नीयत का है। हमने पहले शुरू में आपको बताया है, जब हम खरीदने और बेचने के मसाइल पेश कर रहे थे, कि इनमें असल अल्फाज का मसला नहीं होता है कि लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसकी अहमियत होती है कि उसको किस मौके से इस्तेमाल किया गया, उसको किस लिए इस्तेमाल किया गया, उसका माना क्या है। तो वो शक्ल देखी जाती है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं, और उसके लिहाज से उसके हलाल और हराम होने का फैसला किया जाता है। अल्फाज ही सिर्फ नहीं देखे जाते इसमें। तो बहरहाल मैं आपके सामने एक बात ये पेश किया मैंने, और उसके बाद इसी से जुड़े हुए कुछ मसाइल हैं। मैंने कहा हमारे इस मुल्क में ये किराए के जो मकान दुकान वगैरह होते हैं ना, इसमें कभी मालिक मकान को परेशान होना पड़ता है, कभी किराएदार को, टेनेंट को परेशान होना पड़ता है। ये है परेशानियां लोगों को। जो किराए पर देते हैं लोग, वो भी शिकायत करते रहते हैं अपने टेनेंट से। उनके मसाइल होते हैं कि वक्त पर किराया ना दें। जो जगह उनको किराए पर दी गई है, एक अमानत होती है उनके हाथ में, उसकी हिफाजत करना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसकी कोई चीज़ बर्बाद ना करना, वो सब उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। जो किराए पर होते हैं, तो उसका वो ख्याल ना करें पूरे तरीके से। वो सारे मसाइल होते हैं जो पेश आते हैं, चीज़ें हो सकती हैं जो पेश, जो, तो दोनों में से हर एक को शिकायत होती है। इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों तरफ से गलत होती हैं, वो हराम होती हैं, और उसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। अब उसके बारे में कुछ बातें पेश करते हैं। ये एक बड़ा मसला होता है मालिक मकान के लिए, टेनेंट की तरफ से, कि बाज लोग किराया भी नहीं देते और जगह को खाली भी नहीं करते। हालांकि यहाँ तो चूंकि एक सिस्टम है कि एडवांस देना पड़ता है, वो 10 11 महीने का किराया, कभी उससे भी ज्यादा एडवांस देना पड़ता है। ये रखा हुआ है, ये सारी चीजें होने के बावजूद क्या होता है कि किराया नहीं देते हैं, और किराया न देने में शक्ल यहां तक हो जाती है कि पूरा जो एडवांस था वो भी खत्म हो चुका होता है। नहीं देते हैं किराया, मांग रहे हैं, थोड़ा दबंग होता है ना किराएदार, तो कोई परवाह नहीं, देखता है कि जो है टेनेंट थोड़ा अच्छी तबीयत का, नरम तबीयत का आदमी है, सख्ती नहीं कर पाएगा, तो बहुत परेशान करते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं किराएदारों से, उनको जो शिकायतें हैं वो करते रहते हैं लोग। तो ये एक चीज पाई जाती है। इस्लामी उसूल क्या है, शरीयत का उसूल ज़ाब्ता क्या है, कि किराया जो तय हुआ है, आपको उसके अक्द के लिहाज से, जो भी एग्रीमेंट पेपर होता है उसके लिहाज से, वो आपको अदा करना है। और जिस तरह से है, जिस तरह से महीने महीने जिस तारीख को मुतय्यन हो, उसको अदा करना है। अगर कभी कोई मसला हो गया, नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर लेनी है
कि मैं थोड़ा एक दिन दो दिन के बाद अदा करूंगा, लेकिन ओनर को इस सिलसिले में परेशान नहीं कर सकते। ये जायज नहीं है, ये जुल्म हो जाता है। फिर इस तरह की कैफियत की पूरा खत्म भी हो जाए, नहीं निकलने का नाम ही नहीं लेते। वो जानते हैं कि ये पुलिस के पास नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, यहाँ के जो हालात हैं उसके लिहाज से, तो निकलना ही नहीं चाहते। यानी कोर्ट का जो प्रोसीजर है, मैंने कहा उतना लंबा होता है कि उसकी वजह से लोग जाना नहीं चाहते। तो ये सारे मसाइल होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, क्या करे आदमी फिर। अभी जल्दी ही एक साहब की, हमारे एक पहचान के, हमारे एक भाई हैं, उनका मामला कि टेनेंट को निकालने के लिए उल्टे पैसे देने पड़ते, यानी कितने जमाने से किराया नहीं दिया था, पूरा घर खराब करके रखा, और मैं खुद जाके देखा हूं उसे। उसकी इस्लाह और मरम्मत के लिए, पेंटिंग वगैरह के लिए अच्छे खासे पैसे अभी खर्च होंगे। बिल वगैरह की अदायगी भी नहीं है, वो सब भी भरने हैं। यानी मालिक मकान को तकरीबन कई लाख रुपए का चूना लगा करके वो शख्स निकला है। कभी उल्टे जो है पैसे तलब करते हैं कि मैं छोड़ूंगा, लेकिन इतना चाहिए मुझे उसके लिए, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। किराया भी नहीं दिया, उल्टे जगह छोड़ने के लिए पैसे तलब करते हैं। इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा मेरे भाई। ये सब जुल्म है, जायज नहीं है ये, सही नहीं है ये। तो इन सब चीजों से बहरहाल बचना जरूर। शरीयत का तो मामला, हमारी इस्लामी शरीयत का बहुत क्लियर है इस सिलसिले में। वो हक ही नहीं है उसको, मैं छोड़ने के लिए लाख रुपया, 2 लाख रुपया, कभी कभी इससे भी ज्यादा। दुकानों का मसला भी होता है ना, कि वो जग दुकान को छोड़ने के लिए तो हमेशा दुकान खाली कराने के लिए मकान मालिक को, दुकान मालिक को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, पैसे दे के छुड़ाने पड़ते हैं, वरना वो छोड़ने वाले नहीं। और कोर्ट के अंदर कोई जाना नहीं चाहता। लोग लेते हैं ऐसे पैसे, क्या ये जायज है? तो जवाब एक ही आएगा कि जायज नहीं है। कभी ओनर की तरफ से भी मसला होता है, उनकी तरफ से भी ज्यादतियां होती हैं। हमारे मुल्क के जो कवानीन बने ना, उसमें यही होता है कि जब ज्यादती ओनर की तरफ से हुई तो कानून ऐसा बना दिया कि उसमें सेफ्टी तो हो गई किराएदार के लिए, टेनेंट के लिए, लेकिन मालिक मकान को परेशानियां। कभी टेनेंट की तरफ से परेशानी हो रही है तो कानून ऐसा बना दिया कि वो मालिक मकान के हक में हो गया और इनको परेशानियां। यहाँ असल तो बैलेंस जरूरी होता है। कानून तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मालिक मकान का भी अपना, उसका उसके ओनरशिप के ताल्लुक से उसका पूरा ख्याल हो, और किराएदार की इज्जत नफ्स का भी, और साथ में उसके लिए जो चीज जायज है और जो चीज होनी चाहिए उसका भी लिहाज हो, दोनों तरफ से लिहाज हो, दोनों तरफ की परेशानियों का भी ख्याल हो। तो अब जैसे ये चीज होती थी पहले, अभी तो खैर ना कानून सख्त है ना इस सिलसिले में, और एग्रीमेंट पेपर में भी लिख दिया जाता है इधर, अचानक खाली नहीं करा सकते, क्योंकि आदमी अचानक कहाँ रोड पर जाएगा। अब कोई शख्स यहाँ ये कहे कि नहीं भाई हम ओनर है, मेरा घर है, जब चाहो मैं कहूंगा तो बाहर निकलना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब कंडीशन से इसीलिए बढ़ा दिए जाते हैं, रखे जाते हैं, और इसलिए रखना चाहिए। नहीं तो मसला यही आएगा कि वो ओनर है, वो जब चाहे निकाल सकता है। लेकिन आपने जब कंडीशन रख दिया था उसके वक्त में, जिसमें बैलेंस भी, कि जब अगर मालिक मकान को मकान की जरूरत है, या दुकान के मालिक को दुकान की जरूरत है, तो नोटिस देगा, 2 महीना 3 महीना, जैसा भी उसमें एग्रीमेंट पेपर में लिखा जाए, उसके लिहाज से उसका लिहाज करना जरूरी हो जाता है। यहाँ फिर ये नहीं कि भाई मैं तो मालिक हूं, जब चाहूं निकाल सकता हूं, क्या है इसमें, कोई ये नहीं कहेगा। वो जो आपने शर्त रखा ना, कंडीशन रखा, और उसमें एग्रीमेंट पेपर पर साइन किया है, उस पर आप मुत्तफिक थे,
تو حدیث میں یہ ہے کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان جو شرط ہوتی ہے اس شرط کے پابند ہوتے ہیں، اس کی پابندی آپ کو کرنی ہوتی ہے، تو آپ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، جو کنڈیشن ہے اس کے لحاظ سے اس سے پہلے نہیں نکال سکتے، اور نہ ہی چلو نہیں نکال سکتے تو پریشان کرنا شروع کر دے تاکہ وہ پریشان ہو کر کے بھاگے یہاں سے، تو یہ بھی غیر اخلاقی حرکتیں ہوں گی۔ اسلام تو اس کو جائز نہیں قرار دیتا کہ آپ اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچائیں، چہ جائے کہ آپ نے جس سے معاملہ کیا ہے اس کو کوئی جو ہے تکلیف پہنچائے۔ کنڈیشن ہے، سب کچھ ہے، شرط رکھی تھی، اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے، تو اس کو اس طرح سے اچانک نہیں نکالا جا سکتا۔ جو بھی ایگریمنٹ پیپر کے لحاظ سے جو بھی مدت متعین ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہی اس کی نوٹس کے ساتھ اس کو نکالا جا سکتا ہے، چاہے 2 مہینے کی ہو، 3 مہینے کی ہو، اور جس انداز سے اس میں نوٹس کا ذکر ہوگا اسی لحاظ سے اتنے دن پہلے وہ نوٹس جو ہے ضروری ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے معاملہ اس میں مالک کا بھی ہو سکتا ہے نقصان کا، یعنی اس پہ توازن جو ہے نا، بیلنس ہونا چاہیے۔ تو کبھی کرایہ دار جو ہے تھا، اچانک مہینے کے آخر میں، نہیں بھائی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ یہ چابی لو، میرے پیسے دے دو۔ جو سیکورٹی منی، اصل میں ایڈوانس کہتے ہیں، یہ سیکورٹی منی ہے، ایڈوانس نہیں ہوتا ہے وہ، جو یہاں ایڈوانس کے نام پر دیا جاتا ہے نا، یہ اس کو سیکورٹی منی آپ کہہ سکتے ہیں، صحیح اصطلاح اس کی وہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آپ جا رہے ہو، اس کو بھی دوسرا کوئی کرایہ دار آئے، اب آپ چلے گئے اتنے دن تک فوری طور پر تو دوسرا کرایہ دار نہیں آ جائے گا نا، تو اب مسئلہ کیا ہو جائے گا، اس کو پریشانی، اس کو نقصان ہو جائے گا اس کا۔ اسی لیے جو اس سلسلے میں پیریڈ متعین کیا گیا ہو کہ آپ کو مکان چھوڑنا ہے، تو 2 مہینے پہلے آپ اسے بتائیں، 1 مہینہ پہلے، 3 مہینہ پہلے، جیسی جو ہے وہاں پہ کنڈیشن ہے کہ آپ کو اتنے پہلے بتانا ہوگا تو آپ کو اتنے پہلے بتانا پڑے گا۔ اچانک جوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر وہ برداشت کرنا پڑے گا کیا؟ اگر کنڈیشن میں ہے کہ اچانک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کو حق ہوگا کہ آپ کو 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، جو بھی کنڈیشن ہے اس کے لحاظ سے وہ کرایہ مائنس کر دے گا آپ کا جو سیکورٹی منی ہے اس کے لحاظ سے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جو ہمیں جاننی چاہیے، اس میں وہ حق بنے گا اس کا، کیونکہ یہ شرط ہے، اس شرط کے لحاظ سے وہ نہ لے وہ الگ مسئلہ ہے، انسانی ہمدردی ہو، کوئی چیز ہو اس طرح کی، تو یہاں انسانی ہمدردیاں بھی آتی ہیں، ہر جگہ پر یہ نہیں ہوتا ہے۔ انسانی ہمدردی کیا ہے؟ اچانک کسی کو جانا پڑ گیا، وہ چھوڑ کر کے جانا پڑ گیا، اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی کسی پریشانی کی وجہ سے، تو اب یہاں پر وہ مکان مالک جو ہے ہمدردی کر سکتا ہے۔ شریعت کے اندر اس کو بھی اہمیت دی گئی ہے کہ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اس طرح کی بڑی احادیث ہیں، اور معاملات میں بھی نرمی، خاص طریقے سے جہاں کچھ سامنے والے کو پریشانی ہو، تو اگر آپ اس کی پریشانی میں مدد کریں گے، اس کی انسانی ہمدردی دکھائیں گے وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو اس طرح کی ہمارے شریعت کے اندر بہت ساری نصوص ہیں، یعنی حدیثیں موجود ہیں جس میں اس طرح کی ہم کو تاکید کی گئی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اچانک کی بات، کہ اچانک گھر میں کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان سب کو یہ چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ اب وہ 3 مہینے کے بعد جانے والا، 2 مہینے کے بعد جانے والا معاملہ ہے، اور چونکہ یہ چیز اچانک ہو گئی ہے اسی لیے 2 مہینہ پہلے خبر دینے کا مسئلہ بھی اس کے پاس نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام اس کو بھی اہمیت دیتا ہے کہ کچھ چیزیں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کی جاتی ہیں، اور ایسی حدیثیں ہیں، ایک جو ہے شخص کے تعلق سے حدیث میں بات آئی ہوئی ہے کہ اس کا طریقہ ہی یہ تھا کہ لوگوں کو وہ قرضے پر رقم وغیرہ دیتا تھا،
लेकिन उसके बाद क्या होता था, अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं है, इस्लामी तरीका ये है कि जब आप कर्जे पर दे रहे हैं कोई चीज, तो उसका टाइम मुतय्यन होना चाहिए कि इतने महीने के बाद, इतने साल के बाद, या 6 महीने, 1 साल के बाद वो वापस कर देगा, मुतय्यन। इसको भी, टाइम को भी फिक्स कर लेना चाहिए। तो अगर वो शख्स टाइम पर पैसा वापस नहीं कर पाया और आकर के उसने और कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, तो वो आदमी उसको मोहलत दे दिया करता था। कोई आकर के अगर ये कहता था कि मैं अभी पैसा वापस, कर्जा वापस करने की पोजीशन में नहीं हूं, तो माफ भी कर देता था। तो अल्लाह ताला को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। तो ये चीजें जो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर होती हैं, शरीयत ने इसको अहमियत दी है। तो अपनी जगह पर कंडीशन है, अपनी जगह पर सारी चीजें हैं। लेकिन अगर वाकई किसी को फौरी जरूरत पेश आ गई है और किसी मजबूरी की वजह से छोड़ के जाना पड़ रहा है, और कायदे और जाब्ते के लिहाज से आप उसके जो सिक्योरिटी मनी है उसमें से माइनस कर सकते हैं किराया, हक है आपको ये एग्रीमेंट के लिहाज से। लेकिन ये एक हक है और एक इंसानी हमदर्दी है, एक एहसान का मामला है। एहसान का मामला करने का भी आपको वहां पर इख्तियार होता है। वो हालात के लिहाज से उसे इख्तियार कर सकते हैं। मेरे सामने ऐसी मिसालें बहुत होती हैं, ये कि अचानक कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से वो नहीं रह सकते, वैसा कुछ मसला हो गया है, उनको रहना पड़ रहा है। एक मिसाल दूं आपको अभी, कि औरत के ताल्लुक से एक मसला ये है कि उसके शौहर का जब इंतकाल हो जाता है, तो जहां पर वो रहती है, वहां इंतकाल की खबर जहां आती है, इद्दत उसको वहीं गुजारनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि वो किराए के घर में थे और इद्दत उसको वही किराए के मकान में 4 महीने 10 दिन गुजारनी है। और अगर वो प्रेग्नेंट है और जो हमल से है, तो जब तक हमल उसका, जब तक बच्चा पैदा न हो जाए, तब तक उसको वहां पे गुजारना पड़ेगा इद्दत। अब एग्रीमेंट के लिहाज से मालिक मकान को यह हक है कि 2 महीने की नोटिस से दे करके वो निकाल सकता है। अब यहाँ पर भी अगर उसको यहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, उसके खिलाफ हो जाएगा। मेरे यहाँ उसकी एक मजबूरी है शरीयत के हुक्म के लिहाज से, और उसको वहीं रहना है। तो फिर मालिक मकान को भी यहाँ पर वो हमदर्दी दिखानी चाहिए। ये सब मामलात में ये सब चीजें होती हैं, इनका लिहाज करना पड़ता है कि जब तक उसकी इद्दत खत्म नहीं हो जाती, तब तक के लिए उसको मौका दिया जाए वहां पर। तो बहरहाल ये चीजें होती हैं किराए के ताल्लुक से, किराए पर। अब यहाँ कुछ और चीजें जुड़ी हुई हैं, और मुझे कुछ चीजें उसमें से बड़ी अजीब लगी जब पहली मर्तबा मेरे सामने ये मसला आया। कुछ काम होते हैं बिल्डिंग के ताल्लुक से, जो किराए पर जी जगह ले रखी है उसके ताल्लुक से। अब वो काम ऐसे होते हैं कि उसका ताल्लुक बिल्डिंग से होता है। अब जो किराएदार है जब जाएगा, तो वो वापस लेकर के तो जाएगा नहीं उसको, वो तो छोड़ के जाएगा। तो ऐसी कोई चीज अगर हो रही है उसके अंदर, उसकी जरूरत के लिहाज से अगर हो रही है, तो फिर उसका खर्चा तो ओनर को उठाना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज है कि फर्नीचर के कबिल से, कि जिसको जब आदमी जाएगा तो वो लेकर के चला जाएगा, तो वहां तो बात समझ में आती है कि चलो ये जो है मालिक मकान से उसका कोई ताल्लुक नहीं। एक मिसाल मैं पेश करूं, मोटर फिट करना है। एक जगह मैं किराया पर था, असल में ये चीज मेरे साथ ही पेश आई, मुझे उस दिन वक्त तो बड़ा अजीब लगा, हो मैं बहुत फेडअप हो गया उसकी वजह से। वो पानी के लिए मोटर जो, अब उसमें वो बिल्डिंग के अंदर 3 4, या कह लिए कि 4 फैमिली रहती थी, वो सब किराए पर ही रहते थे लोग।
وہ मालिक मकान का कि आप लोग जो है मिल करके, और सब लोग उसके लिए तैयार भी थे कि वो मोटर जो है खरीद लो, मोटर लगा लो। अब सवाल ये है कि अगर कोई अकेला होता और अकेला कोई मोटर लगा लिया है तो ठीक है, उसकी मोटर है, अब जाते हुए लेके चला जाएगा, वहां तो बात समझ में आती है ये। मैं असल में शरीयत के लिहाज से वो सोचने लगा था। लेकिन अब जब यहाँ चार लोग हैं उसमें, और ये चारों का उसमें पैसा लगेगा, और उसकी हैसियत बिल्डिंग के इस हिस्से, यानी बिल्डिंग से ही जुड़ जाएगी उसकी हैसियत। वो इसमें से, चारों में से किसी की मिल्कियत नहीं होगी, जबकि चारों ये पैसा लगाएंगे उसमें। मिल्कियत तो ओनर की होगी उसकी। इसमें से कोई भी जब छोड़ के जाएगा तो लेके तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो अकेले का तो था नहीं उसके। अकेले का रहता है तो आदमी लेके चला जाता है कि भाई ये मैंने लगाया था मोटर, मैं लेके जा रहा हूँ। वहां बात समझ में आ जाती है आप। तो यहाँ मुझे वो चीज बड़ी अजीब लगी कि भाई इसका ताल्लुक बिल्डिंग से है, वो पैसा हम क्यों दें? क्योंकि ये चीज हम जाते हुए लेकर के नहीं जाएंगे। मेरे जहन में वही चीज थी। उसके बाद वो बहस का एक मसला आया कि जो है आप किसी से भी पूछ लो। बाद में मालूम क्योंकि वो दो से जो लोग थे वहां पर, वो दो लोग देने के लिए तैयार थे, मुझे वो चीज समझ में नहीं आई। नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसा है वैसा है, वो मालिक का, मुझे बहरहाल वो मसला आखिर तक समझ में नहीं आया कि जिस चीज को हम लेकर के जा नहीं सकते वहां से, फिर उस चीज का खर्चा वो क्यों बर्दाश्त करेगा? जिस चीज को उसको लेकर के जाने का हक होगा उसी को बर्दाश्त भी करेगा, उसमें कोई मसला नहीं है। वो जैसे उसके फर्नीचर्स होते हैं, लेके आया था वो लेकर के चला जाएगा, वैसे ये चीजें भी हो सकती है। वो अपनी कोई चीज लगाया है, अपने पैसे से लगाया है, और जब वापस जाएगा तो लेके जाएगा, और मालिक मकान भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उसकी मिल्कियत नहीं है। यहाँ हम उसको अपने पैसे से खरीद करके मालिक मकान की मिल्कियत में दे रहे हैं। तो ये एक चीज थी जो अगर पाई जाती है कहीं, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है कि ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, कुछ किराएदार पर गलत तरह का बोझ डाल देना बिल्डिंग के ताल्लुक से या उसकी चीजों के ताल्लुक से, ये जो है गैर मुनासिब होगा। अब यहाँ पर किराए के में रहते हैं, किराए के जो मकान है, अब उसमें कंडीशन के तौर पर ये बात भी है कि एग्रीमेंट पेपर में ये लिखा जाता है कि जिस हालत में हम मकान दे रहे हैं, आप वापसी में उसी हालत में आपको छोड़ के जाना है। अब मसला क्या आता है इसके अंदर, परेशानी क्या होती है इसके अंदर? अब एक पेंटिंग का मसला है। अब ये कॉमन चीज है कि छोड़ने के वक्त में वो पेंटिंग करा के जाएगा। चलो, इसको कहते हैं ना कि उर्फ के लिहाज से जो चीज होती है उसको तो बाकायदा कंडीशन में लिखा भी जाता है, तो एग्रीमेंट पेपर में ये होता है, और टेनेंट ने उसके ऊपर इत्तेफाक किया है और उसने बाकायदा सिग्नेचर किया है, तो उसको वो करना है, वो करके जाएगा, करा के जाएगा। लेकिन ओनर को ये होता है कि नहीं, ये हम खुद कराएंगे, और उसके पैसे में से वो अच्छी खासी रकम जो सिक्योरिटी मनी है उसमें से काट लेता है, और उस टाइम पर वापस पैसा वापस करने के टाइम में जो ओनर होता है अक्सर उसकी तरफ से जुल्म हो जाता है। जहां एक तरफ टेनेंट का था, मैंने जिक्र किया कि जब दबंग होता है टेनेंट तो ये उल्टा वसूल करता है, किराया भी नहीं दिया होता है, उल्टा पैसा वसूल करता है। यहाँ उसके बिल्कुल खिलाफ में ये हो जाता है कि अगर ओनर, ज्यादातर ओनर की तरफ से, जब टेनेंट बड़ा सादा और सीधे किस्म का आदमी होता है, तो उसके पैसों में से जो कि सिक्योरिटी मनी के तौर पर दिया हुआ होता था, अच्छा खासा पैसा मुख्तलिफ चीजों के नाम से, इसका ये, इसका इतना, इसका इतना, वो जो है कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज आदमी इस्तेमाल किया है तो इस्तेमाल के बाद तो उसमें फर्क आना है।
वो बिल्कुल उसी कैफियत में कैसे हो सकती है चीज जिस कैफियत में उसने हासिल जो किराए पर लिया था। मैंने कहा कि आपको जैसे ये पेंटिंग का मसला है, तो कंडीशन में है ये चीज, एग्रीमेंट पेपर में है ये चीज, ये कंडीशन है कि आपको पेंटिंग कराना है, तो ठीक है, उसने माना था, वो हक होगा, उसको पेंटिंग कराना पड़ेगा। लेकिन गलत तरीके से इसमें पैसे काट लेना, ये सही नहीं। इसी तरह से टेनेंट की तरफ से भी अगर ज्यादती होती है कि जैसे पेंटिंग थी उसी अंदाज की पेंटिंग कराना चाहिए, जब एग्रीमेंट में है तो उसका ख्याल होना चाहिए। उसकी तरफ से भी अगर कोई इसमें गलत मतलब ये कि उस अंदाज की नहीं, बड़े हल्के किस्म की करा दिया, तो वो भी गलत होगा। तो दोनों में से हर एक को दूसरे का ख्याल उसमें करना होता है। जैसा एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट पेपर की पाबंदी करनी होगी और उसका लिहाज करना होगा, जैसे भी जो भी शक्ल उसकी होती है उसका लिहाज करना होगा। क्योंकि अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान जो शर्त है उसके मुताबिक उसको रहना पड़ता है, उसकी पाबंदी करनी पड़ती है। तो किसी के ऊपर किसी की कोई ज्यादती अगर होती है तो जालिम कहलाएगा, और जालिम और उसके मुकाबले में जो होगा वो मजलूम हो जाएगा, और मजलूम की आह लगती है, उसकी बद्दुआएं लगती हैं। इसको जहन में रखना चाहिए मुआमलात करते हुए। तो बहरहाल ये किराए पर जो लेते हैं उसके ताल्लुक से उससे जुड़ी हुई जो चीजें थी वो मैंने आपके सामने पेश की हैं। और भी कभी जो है कोई चीज गाड़ी वगैरह किराए पर लेते हैं या कोई और चीज लेते हैं तो उससे जुड़ी हुई चीजें। एक आखिरी बात किराए के बारे में जिक्र कर दूं, चूंकि हमारे यहाँ आम तरीके से यही है कि किराया ये मंथली होता है, यानी महीने महीने किराया अदा करते हैं। वैसे ये किराया भी, इसकी भी तीन शक्लें होती हैं, और दूसरे मुल्कों में उस तरह की शक्लें राइज हैं। कभी ये किराया सालाना भी हो सकता है, यानी पूरे साल का किराया एक मर्तबा देते हैं। ये किराया हफ्ते के लिहाज से भी हो सकता है, बाज़ चीज़ों का किराया उसी लिहाज से दिया जाता है। तो जिस तरह से भी आपस में तय किए हैं, किराए की जो शक्ल इख्तियार करेंगे उसी की पाबंदी करनी होती है, चाहे वो मंथली हो चाहे ईयरली हो, यानी एनुअल जो आप कहते हैं, सालाना जो है, या जो है हफ्ते के लिहाज से हो, वीकली हो, जो भी हो, जो किराया तय होगा उसी के लिहाज से, एग्रीमेंट के लिहाज से किराया अदा करते हैं। तो ये सब जायज होगा, इसमें शरीयत में कोई पाबंदी नहीं होती है, क्योंकि असल ये मामलात है, अक्द है ना, तो इसमें असल यही होता है कि चीज जायज होती है। ये मसला नहीं होता है कि वो कितने दिन का, एक महीने का रहेगा तो जायज है, 2 महीने 3 महीने में एक मरतबा किराया देना है, वो किराया मुतय्यन किया है, 3 महीने का किराया एक साथ जो है उसकी सहूलत उसी के लिहाज से अदा करने की, उसी के लिहाज से एग्रीमेंट है, तो 3 महीने पर देगा, 6 महीने के लिहाज से है 6 महीने पर देगा। एक और चीज और जोड़ दूं, वैसे तो मैं खत्म करना चाह रहा था, कि बाद ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पर 1 साल के अंदर अगर मालिक मकान निकालना चाहेगा, 1 साल के अंदर ही, तो सामने वाले को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो एग्रीमेंट में बाकायदा इस तरह से शर्त रखना कि 5 साल के लिए इसकी इसका लॉक पीरियड है, 10 साल के लिए, यानी ओनर 5 साल से पहले उसको निकालने के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये लॉक पीरियड। कुछ चीजें होती हैं जैसे स्कूल के लिए लोग लेते हैं या और किस किराए वगैरह के लिए, तो वहां पर उनको रहता है भाई बहुत जल्दी निकाल देंगे तो मसला हो जाएगा उनके लिए स्कूल लेकर के कहीं और जाना। किराए पर घर ढूंढ करके चले जाना वो आसान होता है, लेकिन इसमें तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। या दुकान वगैरह में भी इसका मसला होता है, तो लॉक पीरियड रखते हैं उसके लिए। अगर कंडीशन में है ये तो जायज है। मैंने कहा ना कि असल में इसमें चीजें जायज होती हैं जब तक कि हराम होने की कोई दलील ना हो, तो कंडीशन ये रखना जायज है। इस कंडीशन के लिहाज से एग्रीमेंट पेपर बना हुआ है और उस पर सिग्नेचर है, यानी उस पर बाकायदा मुआफकत है सामने वाले की,
दूसरी पार्टी की, तो उसी की पाबंदी करनी होगी, उससे पहले हक नहीं होगा। तो बहरहाल ये कुछ है, कुछ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं इससे, कि कभी दो तरह का एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट होता है वो गवर्नमेंट के लिहाज से, और एक एग्रीमेंट रखते हैं उनके आपस में अपनी समझदारी के लिहाज से। बाद में अगर इख्तिलाफ होता है तो ऐसे मौके पर बड़ी परेशानियां हो जाती हैं, वो एक अलग मसाइल हैं उसके। तो यहाँ ये सब चीजें हैं। इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा मसला हमारे इस मुल्क में ये भी है कि अगर कोई किसी जगह पर किराए पर बहुत सालों से रह रहा है, तो उसकी अपने मालिक बन जाने का मसला है, और फिर जो है मालिक मकान के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको वहां से वो निकाल सके। जो इस तरह की चीजें होती हैं, शरीयत में जाहिर सी बात है कि ये चीजें नहीं हैं। चाहे वो जितने साल भी रह जाएगा वो टेनेंट होगा, जो ओनर है वही ओनर रहेगा। ओनरशिप किराए पर कई साल रहने से बदल नहीं जाती है, या उसका हुक्म चेंज नहीं हो जाता है। जी, कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा पहले और रोकना चाह रहा था, लेकिन चूंकि ये कुछ चीजें थी तो सोचा कि उसकी बात वो भी जिक्र ही कर दूं, तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। जी, बहुत जल्दी में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। ये लीज की कोई शक्ल जायज़ है या सारी शक्लें वो हराम है शेख? हैं। जब वो लीज होगा तो हराम ही होगा। अच्छा। जी हाँ। तो चाहे उसमें किराए का कोई ये हो, वही चूंकि मैंने कहा, किराया जो हीले के तौर पर है वो किराया नहीं कहलाता। हम्म। हम्म। चाहे कितना भी किराया हो हाँ, वो उसमें, किराया, मैंने कहा अगर वो किराया वाकई किराया है, तो लीज की जरूरत नहीं है। तो किराया वाकई का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 25,000 किराया है, अच्छा। लेकिन वो 20,000 किराया ले रहा है, कोई बात नहीं, वो अच्छा। किराया ही है वो जो है। किसी अच्छा। को और भी रियायत करके 15,000 ही ले रहा है, तो भी हाँ वो हाँ हाँ। किराया ही है। तो मसला किराया का अपना होता है कि किराए पर दिया है, चाहे वो किराया कितना भी ले। हो अच्छा। सकता है कि किसी से 2 ही हजार किराया ले ले वो, लेकिन किराए पर दिया है। यहाँ हीले के तौर पर नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि भाई अच्छा है कि आप रहें, मेरा तो मकसद सिर्फ ये है कि जगह की हिफाजत हो जाए। ऐसे भी होते हैं बाज मसलबा, यानी हमने बाज हालात ऐसे देखे हैं कि मकसद क्या है कि वो साहब जो मालिक मकान होते हैं कहीं बाहर होते हैं जैसे, तो घर की हिफाजत करने वाला कोई है नहीं, तो किसी को कहते हैं कि अच्छे आदमी को पकड़ करके कि आप जो है रह लीजिए यहाँ पर, आप कुछ मत दीजिएगा, बस मेरे घर की हिफाजत होनी चाहिए। या बहुत कम 1,000 2,000 3,000 जो है, कुछ भी जो है वो उसको हक है, वो कर सकता है, वो किराया ही है फिर भी वो। लेकिन ये कि हमने असल में लीज पर दिया हुआ है, लेकिन अब वो चीज जायज नहीं है बोल करके हम क्या कर रहे हैं, जायज बनाने के लिए थोड़ा 1,000 2,000 किराया रख रहे हैं, जो हीला है, तो वो चीज तो जायज नहीं होगी। जी। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अलैक्म शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी। शेख, आपने बताया कि जब कर्ज कर्ज किसी को कर्ज देता है तो उससे फायदा उठाना सही नहीं है। जी हाँ। कोई ऐसी शक्ल है शेख जो कर्ज लिया है और जो जो दिया है दोनों इससे फायदा उठाए? नहीं, फिर वो कर्ज नहीं होगा। फिर वो कर्ज नहीं होगा, कर्ज में दोनों के फायदा उठाने का मसला आता ही नहीं है। जी। शेख, ये एडवांस बढ़ा बढ़ा के किराया कम करना वो भी इसी में आएगा या? वो किराया है तो कोई वो बड़ा मसला एडवांस बढ़ाने का नहीं होता है। असल में क्या होता है कि बाज़ जगहों पर जो हमने देखा यहाँ पर, उस सिक्योरिटी मनी जो होता है वो एडवांस नहीं, वो सिक्योरिटी मनी है। तो बाज़ जगहों पर देखा कि जैसे अब एक तो होता है स्टैंडर्ड उसका, कि आपको 11 महीने का या 10 महीने का जो किराया बनता है वही सिक्योरिटी मनी आपको देना है, एक स्टैंडर्ड है ये। लेकिन जो छोटी छोटी जगहें होती है ना, जहाँ पर बहुत बड़ा ज़्यादा किराया नहीं होता है,
और छोटे मकान होते हैं या गरीब मिस्कीन लोगों को देते हैं, वहाँ उस तरह के स्टैंडर्ड का लिहाज नहीं हो पाता है। तो एक लमसम रकम होती है, 1 लाख रुपया एडवांस है। हालांकि 10 महीने का किराया देखें तो जो है आप 60,000 रुपये होगा वो, यानी 6 ही हजार रुपया किराया है असल में। तो किराया ही है 6 हजार रुपये है, लेकिन वो एडवांस की रकम जो है वो लमसम रखने वो जो है रख लेते हैं, 1 लाख रख दिया, कहीं जो है 50,000 रख दिया, हालांकि 3 ही हजार किराया है महीने का। वो छोटी छोटी जगह हैं, तो उस उन जगहों पर मैंने देखा कि कुछ सिक्योरिटी मनी वो लोग ज्यादा रखते हैं। असल में उन लोगों को बहुत डर होता है कि ये लोग जगह जो है कहीं किराए पर आ जाने के बाद कुछ गड़बड़ न करें, तो उसके लिहाज से वो लोग रखते हैं वो। लेकिन वो किराया ही होता है उनका, उसमें लीज का मसला नहीं होता है। जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, जैसे वो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं बड़े, उसमें 40-50 हजार उनके किराए होते हैं, बड़े बड़े फ्लैट वगैरह हैं, तो वहाँ उन लोगों को बड़ा इत्मीनान रहता है किराए पर देने वालों को, तो वो स्टैंडर्ड लिहाज से वो चलता है कि 10 महीने का जो किराया है वही एक उर्फ है यहाँ पर, यानी बैंगलोर के अंदर जैसे, तो उतना के उसको एडवांस में देना है या सिक्योरिटी मनी के तौर पर देना है, वो सब जानते रहते हैं उसको। तो इसलिए वो उसको मना नहीं कर सकते, जो 1 लाख ले लेते हैं, 1.5 लाख ले लेते हैं। हालांकि 1,10,000 ही 10 महीने का किराया आ रहा है या 20,000 ही आ रहा है, लेकिन 1.5 लाख सिक्योरिटी मनी ले लिया है, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो फिर भी वो सिक्योरिटी मनी माना जाएगा, ये किराया ही माना जाएगा जी। अच्छा। जी, बस करें इस मसले को, आज का मसला इसी पर ख़त्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।